Matthew 27, 1 to 19. When morning came, all the chief priests and the elders of the people plotted against Jesus to put him to death. And when they had bound him, they led him away and delivered him to Pontius Pilate, the governor. When Judas, his betrayer, seeing that he had been condemned, was remorseful and brought back the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have sinned by betraying innocent blood. And they said, What is that to us? You see to it. Then he threw down the pieces of silver in the temple and departed, and went and hanged himself. But the chief priests took the silver pieces and said, It is not lawful to put them into treasury, because they are price of blood. And they consulted together and bought with them the potter's field to bury strangers in. Therefore that field has been called the field of blood to this day. Then was fulfilled what was spoken by Jeremiah the prophet, saying, And they took the 30 pieces of silver, the value of him who was prized, whom the children of Israel prized, gave them for the potter's field, as the Lord directed me. Now Jesus stood before the governor, and the governor asked him, saying, Are you the king of the Jews? Jesus said to him, It is as you say. And while he was being accused by the chief priests and the elders, he answered nothing. Then Pilate said to him, Do you not hear how many things they testify against you? But he answered him not one word, for the governor was marveled greatly. Now at the feast, the governor was accustomed to releasing to the multitude one prisoner whom they wished. And at that time they had a notorious prisoner called Barabbas. Therefore, when they gathered together, Pilate said to them, Whom do you want me to release to you, Barabbas or Jesus, who is called Christ? For he knew that they had handed him over because of envy. While he was sitting on the judgment seat, his wife sent him, saying, Have nothing to do with that just man, for I have suffered many things today in a dream because of him. Praise the Lord. आज का पवित्र पाठ मत्ती के पुस्तक अध्याय 27 और पद 20 से 21 तक लिया गया है। परंतु मुख्य याजकों और परिजनों ने भीड़ को भड़काया कि वे बराबस को छोड़ने और यीशु का मार डालने की मांग करें। तब सज्जापल ने उत्तर दिया, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बराबस को। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर मैं यीशु का जो मसीह कहलाता है क्या करूं? उन सब ने कहा, बस वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। उसने कहा, क्यों? उसने क्यों बुराई की है? परंतु वे और भी अधिक चिल्लाकर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मुझसे कुछ भी बन नहीं पड़ता वरना दंग होने पर है, तो उसने पानी लिया और भीड़ के सामने अपने हाथ धोकर कहा, मैं इस मनुष्य के लहू से निदेश हूँ, तुम ही जानो। इस पर लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। तब उसने बराबस को तो उन्हीं के लिए छोड़ दिया। यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए सौंप दिया। तब राज्यपाल के सैनिक यीशु को प्रेटोरियम में ले गए और वहां उसको चारों ओर समस्त रोमी सैन्य दल को एकत्रित कर दिया। फिर उसके वस्त्र उतारकर उन्होंने उसे गाढ़े लाल रंग का चोंगा पहनाया और कांटों की मुकुट गनकर उन्होंने उसके सर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया। फिर उसके आगे घुटने टेक कर वे उसका उपहास करके कहने लगे, ये यहूदियों के राजा तेरी जय हो।
उन्होंने उस पर थूका और सरकंडा लेकर वे उसके सर पर मारने लगे। उपवास करने के बाद उन्होंने उसका चोंगा उतारा और उसी का वस्त्र उसे पहना दिया और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए। आमीन। खुदावंद के जिंदा और बाबरकत और पुरफजल नाम में सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद का सबके साथ हो और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने आज का दिन हमारी ज़िंदगी में दिया। बहुत सी ज़िंदगियाँ आज का दिन ना देख सके, पर हम खुदावंद के मुबारक बेटे बेटियाँ हैं जो खुदावंद ने आज का दिन हमें दिखाया कि हम उसके दुखों में, उसकी तकलीफ़ों में और ये सब कुछ हम देख सके और सुन सके। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, खुदावंद ने मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया है कि मैं उसके जिंदा पाक कलाम से तिलावत कर सकूँ, जिस कलाम को उसने सब नामों से ज़्यादा सुना। हालेलुया। तो मैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम से तिलावत करूँगी मत्ती की अंजील, उसका 27 बाब 32 आयत से लेकर 54 तक, 54 आयत तक। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, जब बाहर आए तो उन्होंने शमौन नाम एक करीनी आदमी को पाकर उसे बेकार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए और उस जगह जो गलगता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पक मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना न चाहा और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़े पूरा डालकर बांध लिए और वहां बैठकर उसकी निगाहबानी करने लगे और उसका इल्जाम लेकर उसके सर के ऊपर लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह है। उस वक्त उसके साथ 2 डाकू मसलूब हुए, एक दाहिने और एक बाएं, और राह चलने वाले सर हिला हिलाकर उसको लाम तान करते और कहते थे, आए मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने ताई बचा, अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। इसी तरह सरदार कहीं भी फिक्रियों और बुजुर्गों के साथ मिलकर उसके ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने ताई नहीं बचा सकता, ये तो इसराइल का बादशाह है। असली पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान लाएं। इसने खुदा पर भरोसा किया है, अगर मैं इसे चाहता तब इसको छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूँ। इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लाम तान करते थे और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्कों में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली अली अलमाशा लब्तसीनी, यानी आए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है, और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरका में डुबोया और सिरकंडे पर रखकर उसे चिसकाया। मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखे तो एलिया उसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लरजी और चट्टानें तिरक गई और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। पर सूबादार जो उसके साथ यीशु की निगाहबानी करते थे बंजाल और तमाम माजरा देकर बहुत ही डर कर कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा था। हालेलुया। खुदा उनके जिंदा बाबरकत और पुरफजल कलाम के वसीला से सबकी सलामती हो। आमीन।